So hello guys, today we are with someone who proves that DSC students can trade Excel sheet for punchlines. Abhijit, welcome back. Thank you. Thanks a So lot. before we start, one question. Yeah. When you were at DSC, Yes. did you ever imagine that fans are screaming for you instead of presentations? Fans are screaming for you तो इतना वैसे होता भी नहीं है. I think you're mistaking me for somebody else. So, sir, what's the first memory that pops into your mind when we say DSE? Oh यार, a lot of memories. I don't even know if JP tea stall is still there. Yeah, JP वो भी है. तो I mean, obviously some of the memories are little, I don't know, not unmentionables on camera that way, but there are a lot of good memories. The place which पीछे जो वहाँ पे बैठे रहते थे, and he would sometimes give like crushed ice, crushed ice देके उसमें मसाला कोक नहीं डालते थे हम. But I'm sure masala coke was nice also, but sometimes in that heat, in Delhi heat, you do feel like having other unmentionables in the campus. So, but yeah, I have a lot of memories. I mean, a lot of them in the classroom, a lot of them outside classroom, mutton dosa, canteen mein khana. Of course, a lot of times spent with other classmates. काफी मस्ती भी करी, काफी chill भी करा, पढ़ाई भी करी है बीच-बीच में कभी कभार. And yeah, a lot of good fun. So आपने ये choose करा MBIB. So were you aiming for some corporate job or international aspect in that? यार, I mean, do I give the honest answer or do I give the completely honest answer? तो यार यही था कि I was that time I was already working in Hewitt Associates. मैं already काम कर रहा था and I thought that जो एक होता है कि एक साल ड्रॉप लेके मैं ढंग से पढ़ूंगा, but फिर उसके बाद my girlfriend that time and wife right now Nidhi was like ये course बहुत अच्छा है and इसका कर लेते हैं, and I'm like हाँ तू ले, and then she had gone to take the form of that course of तब MIB था, of course right now it's MBIB, and there she called me up and I was like यार मैं एक साल पढ़ना चाहता हूँ because मेरे को एक साल basically chilling करनी थी क्योंकि अभी काम कर लिया है 2 साल, तो अभी लग रहा था chilling करनी है. And she called up my home landline and वहाँ पे मेरी मम्मी ने बोला नहीं आप इसके लिए भी ले लो, ये कुछ नहीं करेगा, घर पे बैठा रहेगा, तो वो कोर्स का ले लिया. एंड देन फिर एग्जाम देने गए और एग्जाम में मैं बहुत ही चिल्ड आउट सा था कि आराम से पहुंच जाएंगे. एंड मैं निधि इज वन ऑफ दोस पीपल हु लाइक्स टू रीच इन टाइम, एंड आई एम लाइक यार तू पागल 2 घंटे पहले पहुंचा देगी. एंड मैंने उसको लेट कर दिया था, तो मैं बकायदा उसको पहले एग्जामिनेशन सेंटर में छोड़ के 15 मिनट वो लेट थी और मैं तो आधा घंटा लेट पहुंचा था. सो आई हैड वेरी लेस क्लू कि क्या था. इट इज मोस्टली लाइक लाइफ, यू जस्ट डू योर थिंग एंड अपने आप ही होता रहता है, फिर उसके बाद जैसे करो. सो या एंड आफ्टर आई गॉट थ्रू इट वाज लाइक कि अरे यार कोर्स की फीस तो बहुत ही कम है, बट या कोर्स की फीस बहुत कम थी और उसमें फिर लगा कि ये करके यार प्लेसमेंट अच्छी हो जाए. बिकॉज आई जेन्युइनली डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ पीपल डू एनी ऑफ दीज अदर प्राइवेट स्कूल MBAs where you're giving bloody 15-20 odd lakhs and then going for placement. It's like अगर 15-20 लाख अगर लगानी है फिर तो मैं अपना कुछ धंधा ही ट्राई कर लूँ यार, और some business or something like that. So I mean that's personally my thinking. Well and good for them. No disrespect to anybody. But yeah, so I was like yeah, let's go for this, and उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता रहेगा. So, sir, you said कि you have a lot of memories in DSE. So you were there for 2 years and MBA में पढ़ाई से ज्यादा अदर एक्टिविटीज होती है. पढ़ाई करी है, ऐसी भी बात नहीं है. करते ऐसी नहीं बात है, करते नहीं है. But if you had to pick one core memory, what would that be? One core memory of यार एक I mean that's not a very positive memory, but एक पागल लेक्चरर ने ज्वाइन किया था हमारे, पागल आदमी था वो. Just a crazy man who was out to get you, and मतलब बिल्कुल ही. एंड फिर उसके बाद हुआ था कि हमारे क्लासमेट था दोस्त अंकित सोनी करके, बहुत ही खुराफाती इंसान. हाँ खुराफाती इंसान. तो just had got a huge kick out of demeaning everybody, punishing everybody. मतलब बच्चों की तरह कि कान पकड़ो, ये सभी मतलब मास्टर स्टूडेंट्स को तुम ये सब करा रहे हो, एंड कभी भी बुला दे रहा है. लाइक बारिश हो रही है, उसमें बोल रहा है अगर मार्क्स चाहिए तुम्हारे अटेंडेंस के तो तुम्हें अभी आने पड़ेंगे. हम लोग बारिश में मर के बाइक में भीगते आ रहे हैं एक क्लास के लिए. तो अंकित सोनी ने क्या किया था, उसका क्रेजी रेपुटेशन तो चल रहा था. ही प्रिटेंडेड टू बी तारुदेव एंड सबको कॉल किया 5-6 लोगों को कि यू आर बीइंग आई एम गिविंग यू 0 मार्क्स करके. तो सबकी फट गई, और इफ यू डोंट वांट 0 मार्क्स देन यू हैव टू कम टू मीट मी राइट नाउ. तो हम सब वहां गए और हमें समझ ही नहीं आया कि क्या सीन है. एंड में पता चला वो अंकित सोनी ने किया था, और तब तक याद है. आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड मेमोरी, बट वो मेमोरी अभी दिमाग में आएगी. काफी वाट लगी थी उस चक्कर को लेके, बट अगेन एंडेड इन अ गुड थिंग बिकॉज हम वहां पे सब पहुंच गए. तो एवरीबडी अगेन इंडल्ज इन दोज अनमेंशनेबल्स वहीं पर पहुंच के. सो यस, अभी भी आप इन जिन दोस्तों की बात करें, आप उनसे अभी भी कनेक्टेड है या लाइक डू यू मीट देम फ्रीक्वेंटली?
Yeah, frequently तो I won't say because but I'm definitely in touch with some of them. Like अंकित तो अभी 2-3 दिन पहले दुबई, because lot of these people ये भी तो हो जाता है ना, everybody is in different city. कोई तो अंकित दुबई में, मैं यहाँ पर मुंबई में हूँ, नैन ये सब दिल्ली में, कैरी करतार जो है वो भगवान जाने कौन से, मतलब आई थिंक कनाडा में ही है. सो एवरीबडी इज इन अ डिफरेंट प्लेस. सो तो ग्रुप पे उस पर बात करते रहते हैं. अभी वो हमेशा ग्रुप ज़्यादा टेस्ट मैचेस के वक्त एक्टिव होता है, तो वो पूरा सो या वी कीप टॉकिंग. अभी अंकित तो आके रहा भी था, अंकित से सोनी से भी बात होती है, उसके बाद छोटे भाई से भी दोस्ती है. सो या डेफिनेटली इन टच, वी कीप चिलिंग. एंड अगेन देयर इज नथिंग दैट बॉन्ड्स गुड फ्रेंडशिप लाइक बैड हैबिट्स. तो सम बैड हैबिट्स दैट इज कॉमन, जो इंटरसेक्शन होता है उसके वजह से चिलिंग भी हो जाती है और काफी मजा आता है. यस सर आपने बहुत सारे लाइक आई हैव बीन वाचिंग योर सेट्स फॉर लॉन्ग टाइम नाउ. या काफी सारे सेट्स आपके थे अबाउट योर एमबी लाइफ एंड अबाउट जेन ज़ी इन द वर्कफोर्स एज वेल. यस यस एब्सोल्युटली. इफ यू आर यू ऑल जेन ज़ी? Yeah. ऐसे घबराहट से बोल रहे हो ना कितना, लेकिन तो सर आपने जैसे बताया कि DSC, आफ्टर DSC यू like during the DSC आपने comedy करना start कर दिया था, you started earning money. So little bit, not that much. हाँ. So it would directly shift to this profession या फिर बीच में नहीं I was placed in Deloitte, thank God. तब वो रूल नहीं था कि प्लेस कॉम छोड़ने के बाद प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठ सकते थे. I was recruited in Deloitte and I worked in Deloitte for I want to say 1.5 years or something. काफ़ी सारा डेलॉयट में काम भी किया. डेलॉयट में बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स भी हुए. डेलॉयट में ऑन साइट अपॉर्चुनिटी भी गया मैं बिकॉज ऑफ कम्प्लीटली अ मिस्टेकन आइडेंटिटी. एक जैसे मैं MIB से था, एक मैं HROD से, एक अरिजीत करके एक लड़के ने भी ज्वाइन किया था. वेरी स्वीट गाय, बहुत ही प्यारा बंदा. और अरिजीत करके एंड वो डेलॉयट में एक मर्जर्स एंड एक्विजिशन का एक टीम बनाया था. तो उसने वो ही वाज पार्ट ऑफ द हेड ऑफ दैट टीम, अरिजीत. तो डायना एक करके औरत थी जो एस्टोनियन वाइट वुमन, डायना, नेहा और अरिजीत, इन लोगों ने एक मर्जर्स का टीम बनाया था. तो ये लोगों ने पूरा टीम बनाया, वाइट पेपर बनाया, प्रेजेंटेशन दी. और फिर पहला जब उसका ऑन साइट प्रोजेक्ट आया ना, तब सभी थोड़ा घर से काम कर रहे थे. तो डायना, अरिजीत और अभिजीत में कंफ्यूज हो गई. उसने मुझे कॉन्टैक्ट भेज दिया और उसने मेरा प्रोफाइल भी ले लिया, मेरा पासपोर्ट चला गया. और जब मैं उससे मिलने गया तो उससे अरे तो दूसरा आदमी है. तो अरिजीत को जाना था दुबई. मेरा पहला ऑन साइट अपॉर्चुनिटी थैंक्स टू अरिजीत हुआ. तो यस, आई वाज इन डेलॉयट. You took a leap of faith, right? Like you didn't take the path that most people take. हाँ. तो how was that? वैसा अचानक से हुआ या आपका पहले से आइडिया था कि ये करना है? यार सी आई रियली लाइक स्टैंड अप और लग ही रहा था करके अगर ट्राई कर सकता, आई वांट टू गिव इट अ शॉट. बट द ओनली रीजन आई डिड नॉट गिव स्टैंड अप फुल टाइम एफर्ट इवन ड्यूरिंग आफ्टर MBA, अदरवाइज मैं शायद नौकरी करता ही नहीं, इज बिकॉज माई गर्लफ्रेंड देन निधि एंड शी इज एनीवे गुजराती एंड आई एम बंगाली. तो वो बहुत ऐसी बहुत सीन है उसमें. और उसने अपने फादर को ऐसा अमरीश पुरी वाला इमेज दिखाया हुआ था कि वो तो वैसे ही नहीं मानोगे. फिर अगर आप बोलना बाद में पड़ा कि दामाद क्या करता है, जोक सुनाता है, तो बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाएगा. तो इसीलिए मेरे को ना बहुत पुश कर करके ऐसा किया कि नहीं देख लो अगर कर सकते हो. तो मैंने उस चक्कर में डेलॉयट ज्वाइन किया, सब कुछ किया. एंड फिर उसके बाद आई जस्ट गॉट फ्राइड कि यार मैं पागल, मैं मतलब एक बार ट्राई तो करना चाहूँगा ये चीज़ को. देन आई वॉज लाइक निधि मैं छोड़ रहा हूँ. एंड तब तक जिस दिन मैंने छोड़ा उसके आधे 2 हफ्ते में हाँ अब मम्मी पापा मिलना चाहते हैं. इतने दिन से क्यों नहीं मिला रहे थे यार, अब इतने दिन से मैं वेट करना चाहता. एंड देन आई मेट देम एंड इंसिडेंटली वो पूरा पोजीशनिंग ही गलत थी. वो उसने अमरीश पुरी वाली पोजीशन थी कि इसके फादर को तो फर्क ही नहीं पड़ा था. नहीं बेटा तुम जो भी कर रहे हो तुमने सोच समझ के किया होगा. दैट्स व्हाई आई वाज देयर. अदरवाइज आई वुड हैव जस्ट टेकन दैट फेथ बिकॉज इट वाज नॉट इवन अ लीप ऑफ फेथ सॉर्ट्स. बिकॉज for me it was always a calculated decision because I was making some money. ज्यादा लीप ऑफ फेथ हो जाता है कि मतलब आजकल जैसा अगर कोई कि भाई मैं सब कुछ छोड़ के इन्फ्लुएंसर बनूंगा, तो भाई ये तो मतलब कुछ फुटिंग, कुछ ग्राउंड फुटिंग है या नहीं. और मतलब ऑल्दो बोल नहीं सकते, यू नेवर नो, कोई ये सोच के सलाह 2 साल में तो पागल वाला इन्फ्लुएंसर बन भी सकता है. बट I knew that I had started making some amount of money and everything, some finances were coming in, so it was a rational decision to say like that. Yeah. So like आपके पेरेंट्स का इस पे कुछ से था कि नहीं यार जॉब को, जैसे आजकल शर्मा जी के लड़के होते हैं उनसे कंपेयर करा जाता है. एंड उस टाइम पे अबे हमारे टाइम पे भी था वो शर्मा जी का लोग. उस टाइम पे ऐसा फिल्म 70s का मैं आ गया. उस टाइम पे क्या है, कॉमिक्स जो थे लाइक इतना ज्यादा नहीं था. हाँ था ही नहीं, स्टैंड अप सीन तो उतना था ही नहीं. तो उस टाइम आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट करा आपको या फिर लाइक क्या था? Yeah, my parents also had that faith in me that I would not take a bad decision because even when I was leaving my job, my decision was that for 3 months I need to make through stand up
as much as I'm making from my job. That was the decision I had, that was the criteria I had put, that 3 महीने मेरे को उतना कमाना पड़ेगा, और 2 महीने मैंने कर लिया वो, फिर उसके बाद लगा अरे पसंद भी तो ज़्यादा है, फिर उस हिसाब से so मैं इतना मतलब impulsive decision type करता भी नहीं हो, तो इसलिए माय पेरेंट्स आल्सो हैड दैट काइंड ऑफ फेथ इन मी, तो दे वर लाइक हाँ जो कर, मतलब उनकी वाट तो लगी थी जब मैंने बोला था नौकरी डेलॉयट छोड़ने वाला हूँ, पापा खाते खाते अचानक से रुक गए थे, ऐसे पूरा ब्लैक एंड व्हाइट मूवी वाला सीन तो हो गया था, बट ठीक है अब कर लिया वो तो मान, मतलब इट वाज फाइन। So, सर आपका कॉमेडी करियर काफी लंबा रहा है काफी टाइम से, हाँ। सो आपको कभी इस टाइम में लाइक हैव यू हैड एनी डाउट, जैसे स्ट्रगल हुआ है डाउट? Yeah. See, no matter what you do in life, you will have double thoughts about it. That could I have done this, could I have not. I'm sure in your life also, you guys must have had lot of कि अभी MI भी करना चाहिए था या कुछ और ही करना चाहिए था, अगर उससे पहले जॉब करे थे उसी को कंटिन्यू करते, या दूसरा कोई कोर्स कोई दूसरे उसमें जाना चाहिए था। So no matter what you do, you will always have lot of double thoughts and lot of that, and things when happen, something peers का कुछ देख देख के ऐसा लगता है भाई अभी मैं अभी ये कर रहा होता वो कर रहा होता, यहाँ पे AQI में ही मरे जा रहे हो, यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो रही, अगर कोई दोस्त कंसल्टेंट दोस्त बैठा हुआ है US में मस्त सा लुक मेरीलैंड करके पिक्चर्स डाल रहा है तो दिमाग में आता, but that's endless यार, you no matter what you do you will always have that, so it's fine. I mean those better that be momentary stuff, and might as well just focus on what you're actually doing right now. Yeah. So jump ले लिया है तो हाँ. if anyone is watching also, या फिर anyone is aspiring to become a comedian, हाँ. so उनके लिए अभी क्या path होना चाहिए that they can come into this line? यार अभी तो थोड़ा see, honestly speaking अभी I would say अभी किसी को stand up start करना बहुत मुश्किल भी हो गया, because there's so many comics and so many entrants, and like when I was a part of stand up it was more like a fraternity, now it is more like an industry, एंड इंडस्ट्री के अपने इश्यूज भी रहते हैं, दे आर लॉट ऑफ क्लीक्स, दे आर लॉट ऑफ ग्रुप्स, क्योंकि अब बहुत सारा वैसा ही हो गया कि जैसे जॉब में जो होता है कि जॉब की इशू होती है कि नेटवर्किंग करनी पड़ती है, सिर्फ काम पे डिपेंड नहीं, वो सब अभी इसमें भी आ गया, नेटवर्किंग कनेक्शन सब कुछ ही इसमें है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टैंड अप अभी करना, फर्स्ट एडवाइस इज ट्राई राइट सम ओरिजिनल मटेरियल, हिट एन ओपन माइक, बट इट विल बी अ लॉन्ग जर्नी, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, and then figure out that if it's meant for you, but that's how, but do not push yourself at the deep end of the pool कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं बस कॉमेडियन ही कर रहा हूँ। I would personally, that's my thing, एक साथ में करते रहो, because stand up as a thing is something that you can find time with other things also. ऐसा नहीं कि तुम अपनी जॉब वॉब छोड़ने की जरूरत होगी या कुछ भी, क्योंकि तुम रात को तो शोज तो रात को ही होते हैं, तो इसीलिए तुम कंटिन्यू कर सकते हो along with also. That's personally my take. So, sir, you said कि जैसे कि अब तो इंडस्ट्री बन गई है, बट फ्रेटर्निटी थी एक टाइम पे, एंड बाकी कॉमिक्स का सुन के भी ऐसा लगता है कि एक टाइम पे काफी ग्रुप्स एंड ऑल बहुत हेल्प किया है। सो हमारे कॉलेज से एक और एलम है जिन्होंने आपका सेम पाथ चूज किया, अंशु मोर। हाँ अंशुमो तो बहुत ही 1997 बैच, 97 बैच, हाँ। तो उनसे बात होती है ऐसे? बहुत बात होती है, अरे वो हम मतलब बात तो बहुत ज्यादा होती है, उसके बहुत बाद में पता चला that he is alum of this, and he was an alum when this was a 1-year course, not even a 2-year course, it was a 1-year course, तब पता चला उनसे, वही तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ ना, जो हम लोग जो जोक्स मार रहे थे कि क्या मिस्टेकन आइडेंटिटी का फायदा उठाना है ना, वो तब से भी चल रहा था। सो अंशु से तो आई हैव चिल्ड अ लॉट विद, एंड वी मतलब ही इज वन ऑफ द क्लोजर फ्रेंड्स इन द फ्रेटर्निटी, बट आफ्टर ही बिकेम अ गुड फ्रेंड ओनली वन डे ऐसे बैठ के बात हो रही है along with the unmentionables and over the unmentionable, and then pata chala ki are he's a senior, but I did not have any idea also. So yeah, that's funny. So he's one of your closer friends, but ऐसा कोई है, ऐसा कुछ हटके नाम जो ऐसे सुन के फ्रेटर्निटी में जो आपके अच्छे दोस्त है, बहुत इज वेरी बिग नेम इन कॉमेडी? नहीं बहुत सारे यार, आई थिंक ऑल ऑफ लाइक सी जनरली तो ऑल कॉमेडियंस आर गुड फ्रेंड्स ओनली, but like you're talking about the comedian friends, comedian friends, see everybody is a good friend. Tandon is a good friend, Tandon side में लोधा में ही रहता है, तो हाँ तो वही है, he's a good friend. Kapoor is a good friend, everybody is a good friend. I mean even the other ones also like are friends only, ऐसा कुछ वो नहीं है. So like your humor and sets are all very relatable. So like क्या ऐसा है कि वो DAC की ग्रुप चैट्स या फिर DAC की मेमोरी से वो चीज बन के आई है? कुछ तो है, कुछ तो दोस्त इंटरेस्टिंग एपिसोड्स, इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स, वहाँ के भी दोस्त है और जगहों के भी दोस्त है, तो बहुत एवरीथिंग दैट यू हैव एक्सपीरियंस उस सबसे ही आया है. सो या डेफिनेटली लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस फ्रॉम DAC हैज कम ऑफ इन डिफरेंट सेट्स. वो तो आया है प्रॉपर टर्न्स अराउंड. सर ऐसे क्या इनिशियली होता है ना, सारे कॉमिक्स का ऐसे डर रहता है
कि अगर सपोज मैं सेट कर रहा हूँ एंड नो वन लाफ्स, आई एब्सोल्युटली बॉम्बिंग इट, बट हाँ, कोई हंसी नहीं छूट रही, हाँ। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? Yeah, so basically, but the idea is that every time you do comedy, you also try to do new, like जैसे तुम लोग जिस आए थे वो शो था, that's a proper set जिस where you're all hearing tried and tested different material, but for that to be tried and tested different spots पे जाके करना पड़ेगा, and for spots मतलब बिल्कुल ही new material, you have to expose yourself to new material, तो new material obviously कभी hit and miss हो सकता है, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, since I've been doing for some time, तो उतना खराब कभी नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं तो रेस्क्यू हो जाएगा, but you have to expose yourself to failing or to bombing, because if you don't do that, then you will just stick with your that show only, वही करते रहोगे, जो बहुत लोगों का सेन है सालों से, एक ही वही करे जा रहे, but you have to try out different things also, so you have to expose yourself to the thought of bombing, at least in stand up per se. I'm sure that must be a Freudian message to life in general also. इनिशियली जब अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो कि एक शो किया है एकदम इनिशियल स्टेज ऑफ करियर, तो तब ऐसा कुछ है, तब हाउ डिड यू मोटिवेट योरसेल्फ कि नहीं मुझे कॉर्पोरेट नहीं करना, मुझे यही करना है? नहीं वो बेसिकली, बट if you have a bad show, then it's very important to get back on stage as soon as possible after that, because if you give a long break, मतलब खराब शो, और खराब शो तो सच बताओ तो कॉर्पोरेट्स में तो अभी भी कॉर्पोरेट शो हो गया, जैसे कॉर्पोरेट शो में कॉर्पोरेट, बिकॉज शो से सेटिंग बहुत मैटर करता है, कॉर्पोरेट शो कभी कभी हो गया बार काउंटर खुला हुआ है, बार काउंटर अगर खुला है भाई, शाहरुख खान बोलेगा कोई नहीं सुनने वाला, तब भी सब ऐसा बाहर इज ओपन करके भाग जाते हैं, तो वो अभी भी हो सकता है, बट so after a bad show, it's very imperative that you get back on stage as soon as possible after that. It's like cricket, having a bad knock, get back on the pitch, you keep playing and everything, so like every bad experience you have to get over the whole thing as soon as possible. This Freudian messages, that is the rule in life, you get back out. Great. So sir, like what advice you will give to the MBIB students right now, like जिनको एक नॉन ट्रेडिशनल करियर पाथ चूज करना हो? यार नॉन ट्रेडिशनल अगर करियर पाथ चूज करना है, पहली बात तो तुमने अच्छा किया है कि तुम ये कोर्स कर रहे हो, कोई प्राइवेट एमबीए नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लाख तुम्हारे बर्बाद हो चुके होते हैं अभी तो तुम पहली बात तुम्हारी वहीं पर ही वाट लग जाती, तो बहुत ये अच्छा डिसीजन तुमने लिया कि ये कोर्स कर रहे हो. In general, मेरा ये मानना है, that's coming from my perspective, is even if you're trying to go for a non-traditional path, don't throw yourself at the deep end of the pool. There's something I'm reiterating only, because if you throw yourself in that situation, then you're unnecessarily pressurizing yourself also, कि अभी मेरे को 4 महीने में ही करना है, 5 महीने में, and pressure does not help in any creative process. तो वो अगर तुम आराम से ही अगर वो करो, plan out things कि let me see this, if साथ में अगर मैं काम कर सकता हूँ या कुछ भी, it's a more phased approach is a better way to go about it. Yeah. So sir, you have been in DSC classrooms, and now you do shows all over India, and very soon all over the world. So, and we were at your show, and mostly I'm sure your shows are sold out. So filled out classroom and ऐसे filled out auditoriums and comic venues. What is the one thing that has never changed for you? Filled out classrooms, पहली बात तो मैं बोलूँगा, क्लासरूम्स में तो अलग बात होती है, यू आर द ऑडियंस, यहाँ पर मैं सामने हूँ, और इन जनरल मैं बोलूँगा कॉलेज के बच्चे के सामने कभी कभी शो करना ना, स्पेशली जो छिछोरे टाइप के ग्रेजुएशन वाले, ऐसे मतलब ऐसे टाइप के कॉलेज जिनको मजा ही आ रहा है कि हूटिंग कर रहे हैं, उससे ज्यादा चैलेंजिंग तो कुछ है ही क्योंकि एक लोग अगर कुछ ऐसे बू करने लग जाए, सारे लोग बू होने लग जाता है. सो इन जनरल आई वुड से गिविंग अ classroom presentation, which you guys I'm sure do a lot of time in your case studies से लेके सब कुछ से लेके जब क्लास के सामने presentation रहता है, it's actually sometimes harder than a show, because show पे तो लोग तुम्हें देखने आए हैं, so it's a very hard work, क्योंकि स्पेशली MIB में मतलब कभी ऐसे क्लास में कर रहे हो, बाकी बच्चे कोई पीछे पड़ा हुआ है, कोई ऐसे तुम्हें बस उंगली दे रहा है, कोई साइंस कर रहा है, तो that's also as hard as anything. So the whole idea is to, there will always be some distractions, तुम्हें अपने कर्म में लगे रहना है, एंड वही है बस गेम. सो लाइक अगर 12-year-old अभिजीत अपने आप को करंटली देखता, सो व्हाट वुड ही फील कि लाइक ही वुड बी वेरी हैप्पी दैट आई चूज दिस, या फिर आपको कुछ और बनना था उस टाइम? यार 12-year-old अभिजीत को तो आइडिया ही नहीं था क्या करना है, और नहीं, आई थिंक आई विल बी फाइन ओनली, आई विल बी हैप्पी ओनली, आई विल बी लिटिल सरप्राइज्ड दैट आई हैव अ बेबी बिकॉज आई नेवर प्लान टू गो फॉर अ बेबी. तो वो चेंज हो गया ओपिनियन में, उस तरफ से थोड़ा सा चेंज हुआ, बट आई थिंक आई विल बी मोर और लेस 12-year-old अभिजीत, आई थिंक.
would be happy only with the way things are and with the way things have turned out. So yeah. So, sir, apart from you are now living a life of glory. Glory थोड़ा ज्यादा हो गया. नहीं, वही flamboyant life है, glamorous life है. अच्छा, glamorous brother, glamorous. Suppose when all the lights fade and the sound, they all go away, everything goes away. What is the one thing that you would like people to remember about you? वाओ मैन, ये तो बहुत ज्यादा हेवी ड्यूटी क्वेश्चन. तू ला कहाँ से रहा है भाई ये सारे? ये चैट जीपीटी में पूछ के लाया है. बिल्कुल ही सोल सर्चिंग वाले क्वेश्चंस कि when the lights fade, what is one thing you would want people to remember about you? That yeah, was somebody who tried to do honest work, tried to give original thoughts, and yeah, did good work. Basically, I would want to be remembered for the work that I had put out and the quality of it. So yeah, that's that. भाई तू ही पूछ थोड़े आगे के क्वेश्चन. तू रुक मेरे भाई तू. So who was your role model? Like आप किसको look through करते हो throughout your journey? यार रोल मॉडल, बिकॉज सी व्हेन आई वाज स्टैंडिंग स्टैंड अप ना, तब ऐसा कोई स्टैंड अप उतने थे ही नहीं. वो लाफ्टर इंडिया चैलेंज था, बट दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंड अप दैट वी वर डूइंग. नाउ द लाइंस हैव काइंड ऑफ ब्लर्ड बिटवीन टीवी कॉमेडी एंड स्टैंड अप कॉमेडी, बट देन इट वाज वेरी डिफरेंट. सो आई वुड से in general, comedy inspirations wise, when I was growing up, Jaspal Bhatti was somebody I really loved. His work was amazing, and abhi bhi agar Jaspal Bhatti ka koi kaam dekho, it's so pertinent, it's relevant even till date. Like what timeless classics. Actually tum jab bol rahe थे, पूछ रहे थे कि वो when the lights fade, that's the kind of memory one wants to leave. कि यार कुछ ऐसा काम किया जो अभी भी मतलब चल रहा है और relevant है, और अभी भी उसके thoughts क्या बढ़िया. So Jaspal Bhatti's Flop Show, Full Tension, ये अलग अलग shows अभी भी तुम देख लो, पागलों वाला relatability है. So it was something that I really admired. And stand up in general, तो हम मतलब मेरे लिए तो पर्सनली वही था कि रसल पीटर्स से ही स्टार्ट किया था. जब शुरू में चाक से रसल पीटर्स की वीडियो हो रहे कि भाई ये क्या फनी चीज है, उसी से. सो दैट वाज समथिंग दैट हैड रियली हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट. So I would say to that level, those were the people who were like Jaspal Bhatti for the quality of work, and Russell Peters for the first. Was pretty much the first person I saw his work on YouTube and everything. So yeah, those were the inspirations back then. So let's come to the end. Yeah. And at the end, would you like to tell something to the audience about yourself, or any specific message you want to give them? यार मैसेज तो क्या ही दूंगा, मतलब थोड़ा इन द सेंस मैसेज आई मीन जस्ट यू गाइज आर ऑल आई मीन पार्ट ऑफ द MIB family, and I first of all thanks a bunch to you guys, the alum team. These guys have really they really try to work a lot and keeping the whole MIB family connected. So do support them in any way possible. Do pick up their calls, I say with a straight face. And it's commendable what these guys are doing and on what all the student bodies are doing. So yeah, I would like to thank all you guys for doing a great job, and to the present courses also, be thankful, have some gratitude to these guys. And बाकी तो अपना chilling भी करते रहो, काम भी करना है साथ में, मस्ती भी करनी है, टेंशन भी करना है. So it's all in good fun. Yeah. So thank you so much, sir. Thank you so यार. much for your time. Thanks a lot, bhai. Thank you, bhai. Thanks a lot.